Hello everyone, I'm Rajan, your physics mentor, and today we are going to discuss on a very important topic again from class 10, that is a sound. So let's start. Sound has got a major portion in class 10, so it is a very important. Please note it down that do not miss this chapter because this is the easiest chapter you can say because इसमें आपके numericals बहुत ही कम है. Let's start with the basic form. What is sound? Okay, so in a general form, how sound is produced? If we say sound कैसे produce होता है आपका, तो बहुत ही simple तरीके से मैं इसको अगर explain करूं, sound के production के लिए we need vibration. Now what is vibration? Vibration आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ से अगर आवाज़ आती है, for example, just touch your vocal over here. When you will speak, you can feel the vibration over there. सो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बेसिकली द मेथड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. नाउ एज आई हैव सेड वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वन थिंग इज इंपॉर्टेंट. साउंड के ट्रैवल के लिए इट्स नीड अ मीडियम. ओके, सो ट्रैवलिंग ऑफ साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. वी कैन राइट साउंड नीड्स a medium to travel. Okay, now how we are going to prove this? This is a very easy thing. कैसे हम लोगों को पता चलेगा साउंड को एक मीडियम चाहिए? नाउ लेट मी टेल यू, वो मीडियम आपका एक सॉलिड मीडियम हो सकता है, गैस मीडियम हो सकता है, एक लिक्विड मीडियम हो सकता है. सो sound needs a medium to travel. Now there is another one thing. What is the important thing over here कि sound wave कितने टाइप्स में प्रोपागेट करती है. तो फर्स्ट थिंग, साउंड वेव जो है आपका टू वे में प्रोपागेट करता है. फर्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकेंड वन इज योर ट्रांसवर्स वेव. ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो आपका वेव, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ ओवर हेयर. लेट्स सपोज दिस इज अ साइनसॉइडल वेव. Okay, generally we consider the sinusoidal wave as, let's suppose this is your peak and this is a cliff. Okay, so when we are going to say that it is taking one complete cycle, जब आपका यहाँ से यहाँ पे जाएगा then it is completing one complete cycle. This is generally how we are going to define a graph through which we can easily understand how sound wave is actually propagating, right? The main and the very contrast thing is that how the waves are going to propagate. Now longitudinal wave में आपका क्या होता है कि आपका टू एंड फोर मोशन में आपका जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो टू फोर मोशंस में होते हैं in the direction of the wave, right? When we talk about transverse wave, here we have got a little bit different thing that transverse wave में भी आपका मोशन जो होता है टू एंड फ्रो ही होता है वाइब्रेशन का. बट व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हेयर? आपका वेव जिस तरह से जाएगा, वेव का डायरेक्शन जिस तरफ रहेगा, जस्ट उसके परपेंडिकुलरली आपका ट्रांसवर्स वेव एक्ट करता है. सो व्हाट वी हैव लर्न, साउंड वेव नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. The sound waves can propagate in two way, longitudinal wave and transverse wave. We have discussed it. Now we are going to discuss that what are the important terms we should remember before proceeding towards the main highlights of this chapter. So let's see. So when we talk about the main characteristic or of sound, then we can define it like this. Number one में होगा आपका amplitude, because this is very important for the production of sound. Amplitude, ठीक है, by the name itself it is self-explanatory. Second one is your wavelength. Third one is your frequency. Number fourth is your speed. In here we have got another one term, that is your speed, or you can say here for better view, time period. You can also say time period. These are the important things to remember. Okay, so one by one we are going to
सी ये आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड क्या है, टाइम पीरियड क्या है. सो जनरली एम्पलीट्यूड क्या होता है, आई एम ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम. ओके, फ्रॉम हेयर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है. लेट्स सपोज मैंने एक साइनसॉइडल वेव बनाया. नाउ एम्पलीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ टफ और द हाइट ऑफ क्रस्ट. यू कैन से द हाइट ऑफ टफ इज h1 h dash, हाइट ऑफ टफ इज h double dash. एनीवे, सो आपका जो हाइट ऑफ टफ और क्रस्ट होता है दैट इज जनरली योर एम्पलीट्यूड. सो हाउ यू कैन डिनोट एम्पलीट्यूड, और ऐसा यूनिट अगर मैं पूछूं एम्पलीट्यूड का क्या है तो वो आपका रहने वाला हमेशा मीटर में. When we talk about wavelength, wavelength की जब बात करते हैं तो wavelength की जब बात करेंगे तो इट इज अगेन वेरी सिंपल. दो सब्सिक्वेंट वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं. अगेन वेवलेंथ जो है हम लोग मीटर में, ऐसा यूनिट जो है वेवलेंथ का अगेन तुम्हारा मीटर है. ओके, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. अगर आपको वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ जनरली वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, सिंबल है लैम्डा. दिस इज कॉल्ड लैम्डा. ओके, सो whenever they have asked you to find out the wavelength of any particular wave, it is very simple. आपको क्या करना है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का आपका डिस्टेंस निकालना है जो कि मीटर में होगा. एंड वी डिनोट जनरली वेवलेंथ फ्रॉम द सिंबल लैम्डा ओवर हियर. डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द सिंबल ऑफ लैम्डा. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली क्या डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. Okay, number of oscillations I'm denoting oscillations by O per second. Time is in second. Okay. Now when we talk about speed, so generally speed of sound in any medium depends upon the medium, density of the medium. Let it be solid, let it be liquid, let it be gas. तो एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखें, साउंड का जो प्रोपागेशन होता है वो सॉलिड में बहुत ही अच्छा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और लीस्ट जो होता है वो आपका गैस में होता है. कम बैक टू दिस, व्हाट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टोटल टाइम टेकन टू फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, दैट इज द टाइम पीरियड. नाउ वी हैव seen amplitude, wavelength, frequency, speed and time period. So these are the 5 important terms you should know before proceeding towards the important terms related to this particular chapter. हम लोगों ने क्या समझा है कि एक साउंड के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइब्रेशन का प्रोड्यूस होना. फॉर एग्जांपल, यू टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्यूनिंग फॉग. आई होप आप लोगों ने अपने लैब में, फिजिक्स लैब में एक ट्यूनिंग फॉग देखा होगा. ट्यूनिंग फॉग आपका कुछ भी नहीं है, इट्स अ डिवाइस लाइक दिस, जो डिवाइस आपका दोनों ही तरफ इस तरह से होता है. ओके, व्हेन यू विल स्ट्राइक इट, आप जब इसको स्ट्राइक करते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशंस यू कैन सी, आपको एक वाइब्रेशंस मिलता है. सो ट्यूनिंग फॉग इज द बेस्ट एग्जांपल हाउ, फ्रॉम वेयर यू कैन सी हाउ एक्चुअली वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साउंड. अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. वन थिंग आई नीड टू ऐड ओवर हियर, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, मैं बताना भूल गया, फ्रीक्वेंसी का आपका जो यूनिट होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. दैट आपका जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम टेकन. सो फ्रीक्वेंसी का जो जनरली यूनिट होता है दैट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हर्ट्ज, HZ. ओके, सो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट अगर आपको किसी ने पूछा है तो फिर आप बोलोगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम टेकन. सो जनरली इट इज, ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, एंड वी डिनोट हर्ट्ज बाय HZ. ओके, सो देयर इज अनदर वन इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोगों को पता होना चाहिए. व्हाट इज एन इको. इको क्या होता है, इको. ओके, सो इको एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप लोग रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में इसका काफी यूजेस है. इको क्या होता है, जनरली आप अगर किसी भी एक ओपन एरिया में खड़े हों, आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल है, तो अगर आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो अगर साउंड विद इन अ सेकंड, विद इन 0.1 सेकंड अगर आपके पास वापस आता है, दैट मीन्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड योर वॉइस इज getting echoed or there it is facing multiple refractions, then you can conclude that
इको आपका हो रहा है। आप लोगों को पता है, आप जब एक बार चिल्लाओगे तो आवाज जब बार बार गूंजती है, जनरली आप किसी भी खाली रूम में जाइए, खाली रूम में अपने आवाज को देखिए, आपका जो वोकल्स है, वो जो आवाज है आपका, वो बार बार इको होता है, ठीक है। तो इको होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या पता होना चाहिए कि आपका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो विद इन 0.1 सेकेंड के अंदर आपके पास वापस आना चाहिए, तभी आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका ये इको प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंड थिंग जो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मिनिमम डिस्टेंस, जो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस इन्होंने कहा है 17.2 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। लेट्स सपोज आपका यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। अभी जो यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है, ये अभी क्या करेगा, यहां से अगर कुछ बोलता है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, ये आपका कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर से ज्यादा या कम भी बोल सकते हैं, मतलब ये आपका मिनिमम है, ये आपका मिनिमम आपको लेके चलना है, सो दैट यू कैन कंक्लूड दैट फाइनली कि आपका यहाँ पे इको प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ वी विल बी डूइंग फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, काफी सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखे हैं इन्होंने। हम लोग बेसिकली इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि व्हाट दे आर टेलिंग। सो लेट्स सपोज विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको कहा गया है, a man is standing at a distance of 12 meter. A man is standing at a distance of 12 meter from a cliff. Will be able to hear a clear echo of his sound? Give reason for your answer. Now, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब जनरली आदमी है तो वो खड़ा ही होगा। चलिए, एक आदमी है जो कि खड़ा है, 12 मीटर का डिस्टेंस है, उसके और क्लिफ के बीच में का डिस्टेंस आपने यहां पे रखा है 12 मीटर। अभी वो आपको पूछ रहे हैं कि विल बी एबल टू हियर अ क्लियर इको ऑफ साउंड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नाउ क्या आपका यहां पे इको हो सकता है? सो व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स कि आपका इको हो रहा है या फिर होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसको जानते हैं कैसे, ठीक है। Time taken to hear the echo is, as we know, time taken is what? T is equal to 2d by v. That means 2 into distance by v, where d is your distance. Don't forget, d is your distance and v is your velocity of sound, or v of sound I am writing over here, v of s. Anyway, so आपका t is equal to this and t is equal to again 2 into 12. By what is the velocity of sound? We generally take velocity of sound is 340. Now, so what you have got, t is equal to 24 by 340. 24 by 340, जो कि अगर आप इसको रिड्यूस करते हो so somehow you will get 12 by 170, which is nearly impossible. So you can say which is less than 0.1 second. Isn't it? We can easily conclude this कि आपका ये जो इसका solution है, ये 12 by 170 जो है, that is definitely going to come less than 0.1 second. So we can conclude the echo will not be produced. What's our second problem? Second problem देखिए आपका क्या है। A wavelength of the wave produced on the surface of the water is 20 centimeter. Wavelength produced, that means lambda is given as 20 centimeter on a surface of water. If the wave velocity means v is given as 24 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, 24 मीटर पर सेकेंड इनवर्स आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। अच्छा, पहला चीज जो इन्होंने कैलकुलेट करने को कहा है, हम लोग इधर लिख लेते हैं एक बारी। क्या कहा इन्होंने कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ओके, सेकेंड थिंग उन्होंने क्या कहा है, let's see, second thing उन्होंने क्या कहा है, just a minute. Okay, second thing they have said the time taken which for the production of one wave. हाँ, तो time taken आपको निकालना है, time taken, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा है कि एक वेवलेंथ है, एक वेव प्रोड्यूस हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर जो है 20 सेंटीमीटर। वेलोसिटी आप लोगों को दिया गया है 24 मीटर पर सेकेंड का, आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ,
नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में आपका कितना वेव्स प्रोड्यूस हुआ और कितना टाइम लगा वो प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। सो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज व्हाट, v बाय लैम्डा। आपने v बाय लैम्डा लेना है यहाँ पे। v बाय लैम्डा सिंपली, अच्छा हमने जो यहाँ पे लैम्डा लिया था ये 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर होगा, जस्ट बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग द सेंटीमीटर इनटू कन्वीनियंट मीटर। सो वी विड हमने सिंपली कैलकुलेशंस कर लेना है 24 बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2 विच इज गोइंग टू रफली गिव यू 120। सो ये जो 120 निकल के आया, दिस इज नथिंग बट दिस इज द फ्रीक्वेंसी। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम टेकन इज नथिंग बट 1 बाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये फॉर्मूला यूज करके आपने करना है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी इज 120। सो रफली यू आर गोइंग टू गेट 8.23 इंटू 10 टू द पावर -3. Okay, that is in seconds, right? So today we discussed about sound. ये काफ़ी ही important chapter है if you see from board point of view. ये important इसलिए है क्योंकि इसके जो numericals होते हैं काफ़ी simple, कुछ basic problems जो हैं, कुछ फॉर्मूलेस के ऊपर पूरा ये बेस्ड है, जहाँ पे हमने क्या क्या बात किया है। हमने यहाँ पे बात किया कि साउंड कैसे एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, साउंड कितने टाइप्स के वेव्स होते हैं। देन हमने डिस्कस किया क्या साउंड के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हमने अभी तक यहाँ पे साउंड का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। वी नीड एक्स्ट्रा 1 क्लास टू कंप्लीट दिस वन। सो जनरली आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स किया हमने, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट time period, frequency, wavelength in any of the question it is given. Moreover, we discussed echo and what are the minimum requirement for the production of echo. We have already discussed that. Now we will be discussing about the minimum sound which a human ear can hear, or what is ultrasonic sound and what are different types of waves. इलेक्ट्रॉनिक वेव्स क्या क्या है वो भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। So that was for all today. If you have liked our video, please thumbs up, subscribe, comment and share. Thank you.